Hi everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So in this video, I'm going to do next question of the Copland kit of F8. So question number is 66. Which of the following are appropriate auditor response to increase audit risks created by the finance team being allocated the work of financial controller? Okay, fine. Let's read out the scenario. So scenario कहता है it is a 1st July 20x5 you are a audit manager in Owl and Co responsible for the audit of our company. Our company manufacture kites which it sells by its website directly to customers. You are currently planning the audit for the year ending 31st July 20x5. Two issue has been brought to your attention during the planning meeting with the finance director. So first आपका है dismissal of financial controller and second issue was payable ledger supervisor. So let's read out the paragraph for the dismissal of financial controller. It said that the financial controller of our company dismissed in the May 20x5. He had been employed by the company for over 20 years and he has threatened to sue the company for the unfair dismissal. The role of financial controller has not been filed and his tasks not been filled and his tasks have been shared between the existing finance department team. So question is particularly related to this financial controller dismissal, and the question is saying which of the following is appropriate auditor response to increase audit risks created by the finance team being allocated the work of the financial controller. So basically the first option is the audit team should be fully briefed and be allowed throughout the audit of additional errors. Obviously this gonna be true, this gonna be the yes this is gonna be the most appropriate auditor response. Why? Because अब यहाँ पे financial controller का जो भी work था that has been allocated to the rest of the team. ठीक है, so इससे क्या होगा, मिस्टेक उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा इस चीज़ का, so they are likely to make a error, वहाँ पे error होने के चांसेस ज़्यादा है. So it means audit team have to adopt a professional skepticism, right? So ये ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन कहता है अब वन होने के बाद वन पता चल गया हमारा राइट ऑप्शन है, इट मीन्स बी ऑप्शन तो इलिमिनेट ऐसे ही हो गया. सो नाउ कमिंग टू द ऑप्शन टू, और आई मीन स्टेटमेंट टू, ऑडिटर शुड अपॉइंट एन एक्सपर्ट to properly assess the risk of misstatement. So we are at the planning stage, right? So हम लोग और एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे बट एट लेटर ऑन रिव्यू के टाइम में हो सकता है, बट हो सकता है जब एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो तब, बट प्लानिंग स्टेज में वी वॉन्ट अपॉइंट द एक्सपर्ट. सो ये इनकरेक्ट हो गया. अब ये जो इनकरेक्ट हो गया सो वी कैन ए भी हमारा ऑप्शन जो था वो इलिमिनेट हो सकता हो गया हमारा. सो सी एंड डी में से कोई एक आंसर होगा. थर्ड कहता है फाइनेंस डायरेक्टर शुड बी रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द ऑडिट टीम विद ए असिस्टेंस फॉर द मैटर दैट कैनॉट बी एड्रेस बाय द रिमेनिंग फाइनेंस फंक्शन. ऑब्वियसली जो ऑडिट टीम है वो फाइनेंस डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकती है टू प्रोवाइड असिस्टेंस, है कि नहीं? सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब लास्ट देखो, द ऑडिटर शुड कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम द एंगेजमेंट एज ए ऑडिट रिस्क कैनॉट बी मैनेज टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. ये जब इंडिपेंडेंट पे बात आती है उस जब और या फिर ये लास्ट ऑप्शन रहेगा रिजाइन करने का, हम लोग प्लानिंग स्टेज पे नहीं करेंगे. सो दिस इज नॉट ए करेक्ट. 67 कहता है विच थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन टू लैक ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन. सो लेट्स रीड आउट आवर लास्ट पैराग्राफ ऑफ द सिनेरियो. Payable ledger supervisor left in the March 20x5 and replacement has only been appointed last week. However, for this period, no supplier statement reconciliation or payable ledger control account reconciliation were performed. The finance director has provided you with the most management account to enable you to perform preliminary means planning analytical procedure using that information you have calculated the following ratio. सो रेशियो कैलकुलेट किया है, इसका यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे बोला गया है देर इज़ नो सप्लाई स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन और पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड. कोई रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है. सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि इन सब में से ऑप्शन कौन सा थ्री ट्रू है इन रिलेशन टू लैक ऑफ सप्लाई स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन. ऑडिटर शुड परफॉर्म द सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन फॉर हावर कंपनी. दिस इज नॉट ट्रू, ये मैनेजमेंट का काम है, नॉट द ऑडिटर का. देर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स. ऑब्वियसली क्योंकि लैक ऑफ सप्लायर हम लोग को स्टेटमेंट ही नहीं मिला हुआ है, सो ऑब्वियसली देर इज मोर चांसेस कि वहाँ पे मिस स्टेटमेंट हो ट्रेड पेबल्स में.
थर्ड कहता है मिस स्टेटमेंट इन द परचेज एक्चुअल बैलेंस में गो अनडिटेक्टेड, ऑब्वियसली ये भी हमारा हो सकता है। फोर्थ कहता है द ऑडिटर विल नीड टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस टू सप्लायर। अब ये जो ऑप्शन है हमारा, ये कहता है हम लोग बैलेंस को कंफर्म करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सप्लायर से। बैलेंस कंफर्म करने से क्या हमारा इसका जो पेबल्स का रिस्क वगैरह है वो थोड़ी ना कम होगा। हम लोग को यहाँ पे बैलेंस कंफर्म करने से हमारा जो रिकन्सिलेशन का रिस्क है वो कम नहीं होगा। सो रेदर देन अगर हम लोग लेजर का रिक्वेस्ट किए होते तो हमारा शायद रिस्क लाइक कम हो सकता था। वहाँ पे सब ट्रांजेक्शन का डिटेल होता है, बैलेंस कंफर्म करने से तो कुछ नहीं होगा। सो ये हमारा इनकरेक्ट है। लास्ट कहता है इंक्रीज सब्सटैंटिव टेस्टिंग विल नीड टू बी परफॉर्म ओवर परचेज एंड पेबल्स। अब सब्सटैंटिव टेस्टिंग मतलब आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कि अब ऑडिटर को ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी नहीं है। सो हम लोग को लाइक मोर वर्क नीड टू बी डन, हम सो दैट कि हम लोग यहाँ पे एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर पाए, है कि नहीं। सो दिस इज ट्रू समहाउ, ठीक है। Okay, so 68. In respect to the unfair dismissal claim, which of the following audit procedure is not appropriate? Question is asking not appropriate, ठीक है। So review correspondence between the financial controller and the company. अब यहाँ पे correspondence का meaning है double way of communication, ठीक है। ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल कंट्रोलर और या कंपनीज का रिव्यू करने से आपको ये ऑब्वियसली एक एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड, रिव्यू बोर्ड मीटिंग माइनर्स हमारा एक एविडेंस का एक ये भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कह सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल जो भी इशू वगैरह होता है यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहता है। सो दिस कुड ऑल्सो बी द वन ऑफ द सोर्स ऑफ एविडेंस, सो इसको भी हम लोग एप्रोप्रिएट कह सकते हैं। थर्ड, रिव्यू करस्पॉन्डिंग्स बिटवीन द कंपनी एंड लॉयर। ऑब्वियसली अगर हम लोग लॉयर से भी हम लोग करते हैं, लॉयर भी हमारा एक एविडेंस का रूप में काम कर सकता है। वो हमको बताएगा कितना अमाउंट एज अ प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे या फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी है कि नहीं, सब ये हम लोग को पता चलेगा लॉयर के थ्रू कम्युनिकेशन करने से। सो ये भी समहाउ है। डिस्कस द क्लेम विद फाइनेंस कंट्रोलर। अब सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोलर से क्लेम डिस्कस करके इट्स अनप्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोलर को डिस्कस करेंगे तो वो ऑब्वियसली कहेगा मैं इतना क्लेम मुझसे लूँगा ही, कह के वो तो रोएगा धोएगा ही, है कि नहीं। सो डी इज लेस नॉट एप्रोप्रिएट। अब 69, विच ऑडिट रिस्क कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, पेबल पेमेंट पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ऑल हैव बीन कैलकुलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, पेबल पेमेंट पीरियड भी, सिर्फ रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। सो अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका डिक्रीज होना मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम होगा, और आपका या फिर ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का कारण कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा, है ना, सेल्स कम होगा, या फिर ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन में सिर्फ रेवेन्यू की बात किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है वेबसाइट सेल मे नॉट बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे एक्यूरेसी की बात ही नहीं हो रहा है हमारा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम है, इट मीन्स हमारा लाइक सेल्स ऑब्वियस कम होगा, अंडर स्टेटमेंट की बात होगा। तो यहाँ पे ये एक्यूरेसी का आइडेंटिफाई नहीं करता है, सो दिस इज नॉट ए करेक्ट। बी कह रहा है विच रेवेन्यू में हैव बीन रिकॉग्नाइज टू ऑर्डली। अगर टू ऑर्डली रिकॉग्नाइज किया हुआ तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये भी इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इनकरेक्ट है या कह सकते हैं। थर्ड कह रहा है रेवेन्यू मे नॉट हैव बीन अकर्ड। यहाँ पे इस ये कहना चाह रहा है कि मीन्स रेवेन्यू फिडुशियरी सेल्स कहना चाह रहा है, मीन्स सेल्स हुआ ही नहीं था फिर भी रिकॉर्ड कर दिया, इट मीन्स इस केस ऑफ ओवर स्टेटमेंट, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है हमारा रेवेन्यू तो घट रहा है। सो ये भी इनकरेक्ट है, बच गया डी, वो डी करेक्ट है। वेबसाइट सेल्स में नॉट हैव कम्प्लीटली रिकॉर्डेड, जिसके कारण अंडर स्टेटमेंट हो सकता है। अब डी पता चल गया तो ऑब्वियसली आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिमिलरली आप पेबल पेमेंट की बात कर सकते हो। पेबल पेमेंट मे नॉट बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, यहाँ पे एक्यूरेसी की बात ही नहीं हो रहा है। सप्लायर मे बी विदड्रॉइंग द क्रेडिट टर्म्स। अब क्रेडिट टर्म विदड्रॉ करने से ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट पीरियड कम होगा, बट हम लोग ने ऑप्शन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है कि नहीं। सो ऐसे करके आप एनालाइज कर सकते हो ऑप्शन को, एक निकाला तो पता चल गया। एग्जाम में उतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास सारे ऑप्शन को रिव्यू करने के लिए, आई मीन सारी जो भी कितना 12 है, 12 को रिव्यू करने के लिए एक पता चल गया, सो गो विथ दैट। सो 70 नंबर क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग रीजन वाई एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी परफॉर्म ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ आवर कंपनी
टू हेल्प आइडेंटिफाई एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क। ऑब्वियसली एनालिटिकल प्रोसीजर हमारा प्लानिंग स्टेज में करने से हम लोग को रिस्क या एंटिटी को अंडरस्टैंड करने में, उसका इन्वायरमेंट ये सब में हेल्प करता है। सो आपका फर्स्ट टू तो ऑब्वियसली करेक्ट है। लास्ट वाला वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आता है। अगर यहाँ पे वर्ड ये डिटेक्ट की जगह एसेस होता, इन दैट के शायद ट्रू हो सकता था, बट यहाँ पे डिटेक्ट की बात कर रहा है, सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। सो 1 and 2 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड। थैंक यू।